Hi guys, hope you all are doing well. So today we'll start with our topic glossopharyngeal nerve. So glossopharyngeal nerve, before starting the cranial nerves, I have already told this before in my previous videos that whenever there is a question on any nerve, be it glossopharyngeal, trigeminal, any type of nerve, you have to start your question, be it a 15 marker or a 5 marker question in your exams. You have to explain by defining that nerve, then the branches or the course of that nerve, then the nucleus which is involved related to that particular nerve, then whole of the branches with its properly labeled diagram, then explain each of its branch, where does it supply, and then the clinical anatomy of that particular nerve. So let's start on to our topic with the glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve is the ninth cranial nerve and it is the nerve of third pharyngeal arch. It is derived from the third pharyngeal arch. Now, coming on to the nucleus. So this diagram I have already shown in my previous lectures, in which I have shown the diagram of brainstem. Uppermost part is the midbrain, lowermost part is the pons, and beneath pons is this part, which is the medulla. Nucleus of the ninth cranial nerve, which is the glossopharyngeal nerve, lies at the level of medulla. So this is the nucleus of ninth cranial nerve, okay, at the level of medulla. Now, talking about the course and the branches of ninth cranial nerve. So, as you all know, this is the diagram of brainstem. I have already shown that this is the nucleus of ninth cranial nerve at the level of medulla. Now, what happens is ninth cranial nerve, it starts its course from the medulla area, then it passes through a foramen known as the jugular foramen. After passing through the jugular foramen, it gets divided into two pathways. There are two pathways. Okay. One pathway is towards the middle ear and other pathway follows away from the middle ear, giving off its six branches. Okay. One of its branch is towards the leading to the middle ear. Okay. So that means to say it has two courses. One which gives off six branches and one towards the middle ear. So let's talk of first course, which is towards the middle ear. Then we'll afterwards talk about the six branches in my later lecture. Fine. So what happens is from the medulla, ninth cranial nerve moves, comes out of its nucleus, leads its pathway, enters the jugular foramen, and then comes out in the form of nerve, which is called the Jacobson's nerve. This nerve coming out of the jugular foramen and entering into the middle ear, this nerve is known as Jacobson's nerve. It enters into the middle ear and forms a plexus. Plexus is basically a group of nerves, okay? So it forms a plexus which is called the tympanic plexus. Then it comes out of the middle ear, out of the plexus, and leads its pathway, okay, and enters into the foramen ovale. Now, as you all know, that fifth cranial nerve is the trigeminal nerve. Trigeminal की जो mandibular branch है, इसके साथ साथ अपना जो कोर्स है वो फॉलो करती है. सो हमारी जो ट्राइजेमाइनल नर्व है वो भी इस फोरामेन ओवेल से निकल रही है. साथ साथ ही हमारी जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व है वो भी अपना पाथ जो है फॉलो कर रही है फ्रॉम द सेम फोरामेन विच इज द फोरामेन ओवेल. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि एक हमारा गैंग्लियन होता है विच इज रिलेटेड विद द फिफ्थ क्रेनियल नर्व. फिफ्थ क्रेनियल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच के साथ रिलेटेड हमारा एक गैंग्लियन होता है विच इज द ऑटिक गैंग्लियन. तो यहाँ पे हमारा एक ऑटिक गैंग्लियन होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमारा जो जैकोब्सन्स नर्व
जब टिम्पैनिक प्लेक्सस में एंटर होता है, फॉर्म करता है प्लेक्सस को, प्लेक्सस से वो मिडिल ईयर से बाहर आता है, तो जो हमारी नाइन्थ क्रेनियल नर्व है फोरामेन ओवेन में एंटर करते ही ऑप्टिक गैंग्लियन के अंदर एंटर कर जाती है। ऑप्टिक गैंग्लियन में एंटर करने के बाद यहाँ पे एक साइनैप्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ दिस साइनैप्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, यहाँ पे हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड हो जाते हैं एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ना ऑब्वियस सी बात है, इसने अपना कोर्स, नाइन्थ क्रेनियल नर्व ने अपना कोर्स फिफ्थ क्रेनियल नर्व के साथ साथ कर लिया है। तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच जो है उसमें एक नर्व होती है विच इज द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, जो हमारा फाइनली पैरोटिड को सप्लाई करता है। तो हमारा ऑप्टिक गैंग्लियन से निकलकर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द नाइन्थ क्रेनियल नर्व है वो साथ साथ चलते हैं हमारे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के, एंड देन फाइनली इट सप्लाइज द पैरोटिड ग्लैंड। फाइन, ये हमारा एक कोर्स था, ठीक है, टुवर्ड्स द मिडिल ईयर वाया द जैकोब्सन्स नर्व। फाइन, नाउ लेट्स टॉक ऑफ द अदर कोर्स विच इज लीडिंग टू गिव द सिक्स ब्रांचेस। उसमें से एक ब्रांच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड विच इज द जैकोब्सन्स नर्व। नाउ फर्स्ट ब्रांच, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एक जैकोब्सन्स नर्व हमने पढ़ ली। उसके बाद जब हमारा नाइन्थ क्रेनियल नर्व निकला और हमारा जो फोरामेन था, जगलर फोरामेन, ठीक है, उससे निकला, उसके बाद एक हमारा मिडिल ईयर की तरफ चला गया। ये जो मिडिल ईयर की तरफ जा रहा था, एक हमारी ब्रांच होगी जैकोब्सन्स नर्व। नाउ अदर ब्रांचेस आर, जो फर्स्ट ब्रांच देता है सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ग्लॉसोफरेंशियल नर्व है वो एक ही मसल को सप्लाई करता है, एंड दिस मसल इज कॉल्ड द स्टाइलोफेरेंजियस मसल। सो फर्स्ट हमारी डिवीजन हो जाएगी नर्व टू स्टाइलोफेरेंजियस मसल। फाइन, उसके बाद ये हमारा पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग जो है उसको सप्लाई करता है। पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग के साथ साथ हमारे जो सर्कमवेलेट पैपिले हैं टंग के ऊपर, ओके, जो हमारा एंटीरियर पोर्शन के साइड जो पैपिले होते हैं, दोज आर द सर्कमवेलेट पैपिले। इन माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड आई विल शो यू द सर्कमवेलेट पैपिले आल्सो, ठीक है। तो उसको नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो है हमारी सप्लाई करती है। देन कम्स द टॉन्सिलर एपिथेलियम। जो टॉन्सिल्स हैं उसका जो एपिथेलियम है उसको भी ग्लॉसोफरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, एंड देन नर्व टू द कैरोटिड बॉडी। सो सबसे पहले जैकोब्सन्स हो गई, उसके बाद स्टाइलोफरेंजियस मसल हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा posterior one third of the tongue and the circumvallate papillae हो गया, the tonsillar epithelium हो गया, and the nerve to carotid body। फाइन, ये हमारा दूसरा कोर्स हो गया जिसमें ये फर्दर ब्रांचेस को सप्लाई कर रहा था, इन विच आई टोल्ड यू, एक मेजर वाइवा क्वेश्चन कह सकते हो कि एक ही मसल ऐसा है जिसको हमारा नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व है वो सप्लाई करता है, विच इज द स्टाइलोफेरेंजियस मसल। नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व है वो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग को सप्लाई करती है, एंड ऑल्सो द सर्कमवेलेट पैपिले। नाउ अब ये याद रखना है, सर्कमवेलेट पैपिले हमारा ये है, ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग है, ये हमारी प्रॉपर टंग है। ये जो अपर मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। ये जो आपको इस पोर्शन से नीचे ये दिख रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर वन थर्ड, एंड ये जो पीछे वाला पार्ट है बिल्कुल पोस्टीरियर वन थर्ड के पीछे, दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। अब ये याद रखना है कि ये एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को हमेशा हमारा जो फिफ्थ एंड सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, दैट मीन्स द ट्राइजेमाइनल नर्व एंड द फेशियल नर्व, वो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को सप्लाई करता है। पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग को हमेशा हमारा नाइन्थ क्रेनियल नर्व विच इज द ग्लॉसोफरेंजियल नर्व सप्लाई करेगा, एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग को हमेशा हमारा टेंथ क्रेनियल नर्व विच इज द वेगस नर्व जो है वो सप्लाई करती है। अब ये याद रखना है कि ये जरूर याद रखना है कि सर्कमवेलेट पैपिले चाहे एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग की तरफ है, बट
नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो है, इट सब जैसे ही वो हमारा पोस्टीरियर वन थर्ड को सप्लाई करती है, वहीं से ही वो हमारे सर्कमवेलेंट पैपिले को भी सप्लाई करती है। ठीक है। So this was all about the codes, the divisions, the branches of the glossopharyngeal nerve. Hope you liked my video. If you liked my video, just give it a thumbs up, share with your friends, and do like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.